اور خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے حقوق کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت. خداوند کے کلام میں سے بڑی ہی خوبصورت بات یہاں پر خدا کا بندہ لکھتا ہے. کہتا ہے مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے. آمین آمین. آئے ہم تشریف رکھیں. کہتا ہے کہ مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور کیا رہے؟ خاموش رہے. اسی طرح خدا کا بندہ داؤد بھی ایک زبور میں لکھتا ہے، زبور نمبر 11 اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے، اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. دونوں جگہوں پر ہی خدا کے بندہ بڑی خوبصورت سیم ٹو سیم ورڈز اور بڑی خوبصورت الفاظ ہیں کہ خدا کہاں پر ہے؟ اپنی مقدس ہیکل میں. کہاں پر ہے؟ مقدس ہیکل میں ہے. مقدس ہیکل کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر ابھی ہم اس وقت موجود ہیں. چرچ جو ہے یہ خدا کی ایک مقدس ہیکل ہے، ایک مقدس جگہ ہے. اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کہاں پر ہے؟ اپنے مقدس ہیکل میں ہے. ہاللیلویا. سو خدا کا بندہ یہاں پر کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ اپنی مقدس ہیکل کے اندر ہے. تو خدا اگر ایک جگہ پر موجود ہے تو کیا ہمیں خدا کے پاس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. جب خدا اپنی ہیکل کے اندر موجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر اس سے ملاقات کرنی ہے تو پھر اس کی ہیکل میں آنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ یا کوئی افسر اپنے دفتر کے اندر موجود ہو تو اس سے ملنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ وہ بندہ اپنے دفتر میں بیٹھا رہے اور ہم اس کے گھر جا کر بیٹھے رہیں یا کسی اور جگہ پر اس کا انتظار کرتے رہیں تو کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے، کیونکہ وہ تو اس جگہ پر موجود نہیں، وہ تو وہاں پر ہے. اسی طرح خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنی مقدس ہیکل کے اندر موجود ہے اور باقی جو ساری جگہ ہے، ساری زمین جو ہے وہ خاموش ہے. اس کا مطلب ہے کہ سبت کے وقت، سبت کے ٹائم پر جب خدا اپنی ہیکل کے اندر موجود ہے، خدا اپنی ہیکل کے اندر ہے، تو باقی جو ساری زمین ہے، جو کل کائنات ہے، وہ اس کے لحاظ سے خاموش ہے کیونکہ وہ یہاں پر موجود ہے. ہاللیلویا. اور کلام کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو جاتے ہیں میں ان کے درمیان میں موجود ہو جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے. یہ سوچ نہایت غلط ہے کہ ہم گھر بیٹھے عبادت کر لیں گے، ہم گھر بیٹھے ٹی وی پر عبادت کر لیں گے تو ہم عبادت میں شریک ہیں. یہ سوچ نہایت ہی غلط ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ اس وقت اپنی ہیکل کے اندر موجود ہے. کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے ملنے کے لیے 2 قدم چل کر 4 قدم چل کر اس کے پاس آئیں؟ ہم اس پر بڑا احسان کر دیتے ہیں، گھر پر ٹی وی لگا کر، گیت لگا کر، نیٹ سے نکالتے ہیں، یوٹیوب سے سرچ کرتے ہیں اور ٹی وی پر سپیکر پر لگا لیتے ہیں. بڑا احسان ہے خدا پر کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم پرستش کر رہے ہیں. جب ہم چرچ کے اندر پرستش کرتے ہیں، جب ہم چرچ کے اندر دعا کرتے ہیں تو یہاں ساز اور آواز بج رہے ہوتے ہیں. بجانے والا ساز بجا رہا ہوتا ہے، گانے والا گا رہا ہوتا ہے اور ہم تالیاں بجا کر پرستش کرتے ہیں. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ جہاں روح اور سچائی کے ساتھ پرستش ہوتی ہے وہاں خدا کا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ابر چھا جاتا ہے. جہاں پر روح اور سچائی کے ساتھ پرستش ہوتی ہے وہاں پر خدا کا ابر چھا جاتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے. یقیناً جب ہم گیت لگاتے ہیں تو خدا کا ابر وہاں پر بھی چھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دھیان نہیں ہوتا. گیت چل رہے ہیں، میسج چل رہا ہے ٹی وی پر، ہم کیا کرتے ہیں؟ عورتیں کہتی ہیں اچھا
जल्दी बर्तन धो लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, या बच्चे तंग करते हैं, या कोई ऐसा काम करने लग जाती हैं, हमारा ध्यान प्रॉपर तौर पर दुआ की तरफ, प्रस्तिश की तरफ नहीं होता। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि खुदा तो अपनी मुकद्दस हैकल है, बाकी सारी जमीन खामोश है, बाकी हर तरफ खामोशी है, क्योंकि खुदा का बंदा जो है वो कहता है कि खुदा अपनी हैकल के अंदर मौजूद है। और दाऊद भी बड़ी खूबसूरती से कहता है कि खुदा अपनी हैकल के अंदर, और वो एक जगह पर बड़ी खूबसूरत कहता है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, किथे चलिए, किथे चलिए, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। जब हम यहोवा के घर में आते हैं तो फिर नहायत बरकतें हासिल होती हैं। जब हम यहोवा के घर में आते हैं नहायत बरकत हमारा इंतजार कर रही होती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं वो टाइम के पाबंद नहीं होते, अच्छा चले जाने हाले ते प्रस्तिश हो रही होनी, अभी तो मैसेज नहीं शुरू होना, भाई साहब ते शुरू होंदे ने चुप ही नहीं करते, बड़ा टाइम लाते, बड़ी लंबी इबादत होती है। क्या ये सोच दुरुस्त है? वो कहते हैं कि मैं तो अपनी हैकल के अंदर मौजूद हूँ और जो पहले आएगा वो पहले बरकत पा लेगा। बिजली का बिल जमा करान जाओ तो लैंड सब तो अगे जाने की कोशिश होती है, सब तो अगे जावांगे पहले वारी आएगी, ऐसे ही है। अगर वारी पीछे आई ना तो टाइम बड़ा लग जाएगा। बड़ी कोशिश होती है कि सबसे आगे जाकर हम लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे, सबसे पहले हमारा बिल पे अगर टाइम ना फाड़े। लेकिन जब हम खुदा के घर की तरफ आते हैं फिर क्यों हम सुस्ती दिखाते हैं, फिर क्यों हम सुबह को जल्दी नहीं उठते, फिर क्यों हम तैयारी नहीं करते? अगर हम खुदा के घर में पहले आएंगे तो क्या पहले बरकत ना पाएंगे? अगर हम पहले आएंगे आगे बैठेंगे तो क्या हम बरकत ना पाएंगे? पीछे बैठने की कोशिश हर वक्त हमारे पास अंदर होती है कि पीछे बैठ जाते हैं, साइड पर बैठ जाते हैं। लेकिन जो खुदा के घर की तरफ लेट अपने कदम बढ़ाता है वो फिर बरकत भी लेट पाता है। ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट बातें हैं लेकिन ये सीखने के लिए नहायत जरूरी है। हमने बहुत सा ऐसा कलाम सीख लिया है जिसकी हमारी जिंदगी में जरूरत है, लेकिन आज इन अल्फाजों की भी हमारी जिंदगी के अंदर जरूरत है। चर्च से आंदे नहीं थे गिले अन्य बड़े, इतने इतने बड़े हमारी जिंदगी के अंदर गिरे हैं खुदा के साथ। हमारी जिंदगी में नहीं कुछ अच्छा हो सकता, हमारी जिंदगी के अंदर नहीं कुछ अच्छा हो सकता। नौकरी नहीं मिल सकती हमें, साढ़े पता नहीं कार बड़ा मिलना है कि नहीं मिलना, पता नहीं हमारी जिंदगी में ये काम होने हैं कि नहीं होने। पर क्या हमने कभी सोचा है कि हम चर्च कितने टाइम से जाते हैं, या हम खुदा को कितना टाइम देते हैं, या हम खुदा के साथ कितने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं? वो कहते हैं कि अगर मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में कायम रहोगे तो फिर क्या होगा? जो चाहोगे आप कह देंगे ना कि मेरे लिए यहाँ पर जंबो जेट भी आ जाए तो वो भी आपके लिए आ जाएगा, लेकिन जरूरी क्या है कि उसकी बातें आप में कायम रहें और आप उसके अंदर कायम रहें, फिर जो भी आप चाहेंगे वो आपकी जिंदगी के अंदर हो जाएगा। लेकिन जरूरत क्या है? हैकल के अंदर आने की जरूरत क्या है? चर्च के अंदर आने की जरूरत क्या है? गिरजाघर के अंदर आने की। जो पंजाबी में कहा जाता था तो चर्च को गिरजाघर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिरजाघर। गिरजे का मतलब है गिर जाना, खुदा के कदमों के अंदर गिर जाना, आजिज़ी दिखाना, खुदा के कदमों के अंदर बैठ जाना। और जिस वक्त हम अपनी अंदर की तमाम चीजों को खत्म करके खुदा के आगे झुक जाते हैं, खुदा के आगे बैठ जाते हैं, खुदा के आगे गिर जाते हैं, तो फिर उसका जलाल हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर होता है। हन्ना जो है वो हर साल हैकल में आती थी, हर साल वो हैकल के अंदर आती, जो भी उस वक्त मखसूस कुर्बानियां थी, जो भी उस वक्त मखसूस हदिये थे, जो भी उस वक्त का काम था, वो सब किया करते थे। वो सब उस वक्त का जो था वो किया करते थे, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, उसके अंदर इस चीज की कमी थी कि वो मां नहीं बनी हुई थी, उसके पास औलाद की कमी थी, उसके जिंदगी के अंदर ये कमी थी, उसके जिंदगी के अंदर ये खोट थी। न जाने उसको इस बात के लिए कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, न जाने उसको किस किस अल्फाजों का सामना करना पड़ा होगा। अक्सर रिश्तेदार बातें करते हैं, अक्सर बहनें जब इकट्ठी होती हैं फिर पूछती हैं
हाले तक कोई खुशखबरी नहीं, या अभी तक खुदा ने आपको औलाद नहीं दी, तो सोचिए वो बात उसके अंदर कितनी ऐसे चुभती होगी, उसको कितना फील होती होगी ये बात। लेकिन वो क्या करती थी कि वो हर साल हैकल में आती और दुआ करती थी। और एक वक्त ऐसा आया कि जब वो हैकल में आई तो उसने अपना आप सारा उंडेल कर खुदा के आगे रख दिया, तो उसने अपना आप सारा खाली कर दिया खुदा के आगे, और खुदा के आगे रोने और गिड़गिड़ाने लगी, और खुदा के आगे उसने अपनी तमाम ज़हनी कैफियत, दिल की बातें, हर चीज उसने खुदा के आगे रख दी और कहा कि खुदा देख, मैं भी औलाद हूँ, देख मेरे पास कोई औलाद नहीं है, मैं इस बात से नहायत तो परेशान हूँ, मैं इस बात से नहायत तो दुखी हूँ। देख खुदावंद, सबके पास औलाद है, जब अपने बच्चों को देखते हैं, जब अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, देख मेरा दिल नहायत दुखी होता है, देख नहायत मैं परेशान होती हूँ। तो खुदा ने उसको उसके हैकल के अंदर आने का सिला दिया और उससे कहा कि तू आने वाले वक्त में अपने साथ बेटा लेके आएगी। हालेलुया। खुदा ने उससे ये पैगाम दिलवाया कि तेरे पास भी बेटा होगा, और वो बेटा जो है वो नबी निकला। हालेलुया, हालेलुया। वो नबी था खुदा का, जो खुदा ने उसे बेटा बख्शा, वो एक नबी था। जब हम हैकल के अंदर आकर खुदा से मांगते हैं तो फिर वो हमारी सोच से बढ़कर हमें गलबा बख्शता है। वो दुआएं करती रहती, खुदा उसे बेटा दे देता, लेकिन शायद फिर वो बेटा उस जैसा ना होता जैसा खुदा ने उसे दिया। खुदा ने उसे नहायत खूबसूरत तोहफे से नवाजा। हालेलुया। क्योंकि वो कोई छोटी मोटी चीजें नहीं इंसान को देता, वो बड़ी से बड़ी चीज और बड़ी से बड़ी बरकत खुदा को देने की कुदरत रखता है। और आज हमें ये अंदाजा ही नहीं है कि हमने हैकल की तरफ रुख करना है। आज हम ये बात अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं कि हमने चर्च जाना है। कई बार देखकर बड़ा अफसोस होता है, हमारे नौजवान हैं, सुबह सुबह उठकर क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, लेकिन चर्च की तरफ वो रुजू नहीं करते। माँ बाप चर्च के अंदर हैं, बेटे क्रिकेट खेल रहे होंगे, बेटियां उठती नहीं सुबह को कि चर्च जाया जाए, कि चर्च चले, क्योंकि माँ बाप जब वो बच्चे इतने से होते हैं तब से उनकी तरबियत नहीं करते हैं। वो कहते हैं ठीक है वड्डे होंगे आपे सीख जाएंगे, तो फिर वड्डे होकर जो अपना आप सीख देने, फिर माँ पे पता कि कहते हैं आते है ही नकम्मे ने, इन्होंने नहीं कुछ करना। जब हमने कुछ सिखाया ही नहीं, जब हमने कुछ बताया ही नहीं, तो फिर वो बच्चे कैसे सीखेंगे कि हमने खुदा के घर की तरफ रुख करना है? वो उनको कैसे पता चलेगा कि हमने खुदा के घर में जाना है, खुदा के हैकल के अंदर हमने जाना है? क्योंकि कलाम के अंदर मिसाल की किताब में लिखा है कि लड़के की ऐसी तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे कभी नहीं मुड़ेगा। हालेलुया। ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि वो बूढ़ा भी हो जाए लेकिन वो उस तरबियत से कभी भी ना हटे। जैसी तरबियत आज हमारे बच्चों को जरूरत है। आज हमारे लोगों के अंदर इस चीज की कमी है कि हमें खुदा के घर में जाना है। सर्दी बहुत है, माएँ कहती हैं चलो टीवी लगा लेते हैं और इबादत कर लेते हैं। फिरने कहीं जाना हो तो सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। किसी शादी में जाना हो तो स्वेटर पहनने की भी हमें जरूरत नहीं फील होती, सूट की शो खराब हो जाएगी। भी सूट बड़ा महंगा पाया, सूट की शो खराब हो जाएगी, स्वेटर नहीं पाना। लेकिन जब चर्च का नाम लिया जाता है तब हम लोगों को सर्दी बड़ी लगती है, तब हम लोगों को गर्मी बड़ी लगती है। लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि खुदा जो है वो अपनी हैकल के अंदर मौजूद है। अगर आज जिंदगियों के अंदर किसी चीज की जरूरत है, आज जिंदगियों के अंदर किसी चीज की कमी है, तो फिर हैकल की तरफ अपने रुख को मोड़ लीजिए, हैकल की तरफ अपने मुंह को कर लीजिए। जिस तरह से आप कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, जिस तरह से आप हैकल की तरफ आना शुरू करेंगे, जिंदगियों के अंदर से जुए टूटना शुरू हो जाएंगे, जिंदगियों के अंदर से बंधन खुलना शुरू हो जाएंगे, जिंदगियों के अंदर से बीमारियां जाना शुरू हो जाएंगी, जिंदगियों के अंदर से तकलीफें, गम, दुख, हर चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका रुख हैकल की तरफ है। हालेलुया। जब हम अपना रुख हैकल की तरफ नहीं करते हैं तो फिर बरकत हमारी तरफ रुख नहीं करती है।
پھر ہماری زندگیوں کے اندر کوئی جلالی کام نہیں ہوتے ہیں. پھر روٹی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے تنہا تے آ گئی پر پتہ نہیں لگتا چاندی کدھر. بڑی مشکل نہ گزارا ہوتا ہے. وہ مشکل سے گزارا تو ہوگا تب ہی نا کہ جب ہم نے دینے والے کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا, جب ہم نے دینے والے کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں بنایا, تو پھر ہماری ضرورتیں, پھر ہماری خواہشات کس طرح سے پوری ہوں گی جب دینے والے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب دینے والے کو ہم کچھ نہیں جانیں گے تو پھر ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, پھر ہمیں دکھ اٹھانے پڑیں گے, پھر ہم پریشان ہوں گے. اگر ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے تعلق توڑ دے تو کیا وہ اپنی تمام جو کماتا بھی نہیں ہے تو کیا وہ اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب مصرف بیٹے نے اپنے باپ سے تعلق توڑا اور وہ باہر نکل گیا, کتنی جائیداد لے کے وہ نکلا, کتنا پیسہ, اور جس نے اپنے باپ سے جو جائیداد کا آدھا حصہ تھا وہ سارا اس نے لے لیا تھا, وہ باہر نکل گیا تھا. لیکن کیا ہوا تھا, ایک وقت آیا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اس کا حال اتنا وہ حال و بے حال ہو گیا تھا کہ جو سور پھلیاں کھاتے ہیں نا وہ بھی اسے نصیب نہیں ہو رہی تھی, وہ بھی اس کے پاس موجود نہیں تھی. پھر اس نے سوچا کہ میرے باپ کے گھر میں جو ملازم ہے نا وہ بھی مجھ سے زیادہ اچھی حالت میں ہیں, وہ بھی مجھ سے زیادہ اچھا کھانا کھاتے ہیں, اچھا کپڑا پہنتے ہیں, اچھی چیزیں ان کے پاس ہیں, اور میں اس کا بیٹا ہوتے ہوئے یہاں پر فقیروں جیسا حال ہے, نہ کچھ پہننے کو ہے, نہ کچھ کھانے کو ہے, نہ کوئی ایسی عشرت ہے, کچھ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے. میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے. لیکن جب باپ نے دور سے دیکھا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اچھا لباس نکالو اور اس کے لیے اچھا کھانا تیار کرو اور اس کے ہاتھ میں پہننے کے لیے ایک خوبصورت انگوٹھی لے کر آؤ, تاکہ میرا بیٹا جو مر گیا تھا وہ اب واپس آ رہا ہے. ہاللیلویا. جب ہم اپنے باپ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم روحانیت میں مر جاتے ہیں, ہماری روحانیت کی فقیروں والی حالت ہو جاتی ہے, زندگی کے اندر روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اور جب روحانیت نہیں رہتی تو ہماری زندگیوں کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا. جب آدم روحانیت میں تھا خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر اس سے باتیں کیا کرتا تھا, لیکن جب گناہ سرزد ہوا, روحانیت اس کے اندر سے کم ہوئی تو خدا نے اس کے ساتھ باتیں کرنا چھوڑ دی اور کہا کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. جب تک روحانیت انسان کے اندر قائم رہتی ہے تب تک زندگی کے اندر برکات قائم رہتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے روح کو خدا کے ہیکل کی طرف موڑا جائے, تھوڑی سٹرگل کی جائے, تھوڑی محنت کی جائے. ہم محنت تو کرتے نہیں ہیں, محنت کی ہم کوئی مشقت نہیں کرنا چاہتے ہم, اور کہتے ہیں گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے. جب ہم نوکریوں پر جاتے ہیں تو کیا ہم ان سے کہتے ہیں سردی بڑی آج ہم نے نہیں آنا؟ ایسے کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. ہم 2-3 سویٹر پہنتے ہیں, ٹوپی پہنتے ہیں, گلوز پہنتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں. تو اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا کے گھر آنا بھی ہماری ڈیوٹی ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے خدا کے گھر میں آئیں, تو پھر خدا ہمیں کبھی بھی اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیتا. وہ کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیتا. وہ چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں اور کثرت کی زندگی کے وارث ہوں. ہمیں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں وہ دیتا, کوئی تھوڑی بہت چیزیں نہیں وہ دینا چاہتا ہمیں. وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا, میں تجھے وارث لکھ دوں گا کہ تو اس قوم کا وارث ہے. میں تیری زندگی کے اندر لکھ کر دے دوں گا کہ یہ ساری چیزیں تیرے لیے انعام میں ہیں. ہاللیلویا. لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہیکل کی طرف رخ کرنا ہے, کیونکہ خدا کا بندہ بڑے خوبصورت الفاظ لکھتا ہے کہ خداوند کہاں ہے؟ اپنی ہیکل کے اندر موجود ہے. ہاللیلویا. وہ اپنی ہیکل کے اندر موجود ہے. اگر ہیکل میں آئیں گے تو ہی کثرت کی زندگی پائیں گے, تو ہی اپنی زندگی کے اندر برکات کو حاصل کریں گے. اگر ہم نہیں آئیں گے تو پھر صرف روٹی دال تو چل نہیں رہی, دال روٹی تو چلتا ہی انسان تھا. خدا اتنا بھی جو ہے وہ سنگ دل یا اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی روٹی دال بھی بند کر دے, وہ نہیں کرتا. نہ وہ صبح اٹھ کر بھوکا رہنے دیتا ہے اور نہ وہ سونے سے پہلے آپ کو بھوکا چھوڑتا ہے.
वो कभी किसी इंसान को भूखा नहीं रहने देता। लेकिन अगर आप ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं तो फिर आसमान वाले के साथ राब्ते नहायत जरूरी है। अगर आसमान वाले के साथ राब्ता होता है तो इंसान की चाल ढाल ही बदल जाती है। अगर इंसान का किसी ऊंचे बंदे के साथ राब्ता हो जाए ना तो उसकी वैसे ही चाल ढाल बड़ी बदल जाती है। तो सोचें कि जिसका राब्ता उस ऊंचे वाले से भी ऊंचे वाले के साथ है, जो आसमान का है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदावंद है, जब हमारा राब्ता उसके साथ हो जाता है तो फिर इंसान को किसी और की जरूरत नहीं रहती, किसी और की हमें जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने हाथ उठाने हैं और आसमान हमारे लिए खुल जाना है। हालेलुया। जब एलिया को पता था कि मैंने हाथ उठाने हैं और आसमान खुल जाना है, सब बड़ी तड़ियां लगाई। कहता है बुला लो अपने देवता को कि आपकी कुर्बानी के नीचे, आपके उसका बैल के नीचे आग दे। बुलाओ अपने देवता को, लगता है वो सो गया है, और खटखटाओ और बजाओ अपनी खंजरियां और अपने तबले और अपने और साज बजाओ, देखते हैं तुम्हारा देवता आता है। क्योंकि उसे यकीन था, उसे पता था कि मेरा राब्ता किसी और के साथ नहीं है, मेरा लिंक किसी छोटे के साथ नहीं है, बल्कि मेरा लिंक उस आसमान वाले के साथ है कि जिसके आगे मैं हाथ उठाऊंगा, जिसके आगे मैं पुकारूंगा और वो मेरी सुनेगा और वो आग से मुझे जवाब देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो जानता था कि मेरा लिंक उसके साथ, किसी छोटे की जरूरत नहीं, हमारे पास मेन चीज है। हालेलुया। हमारे पास आसमान वाला है। हमें खुशी करनी चाहिए इस बात की कि खुदा हमारा है। हालेलुया। और हम खुदा के हैं। जब हम इस बात को सोचेंगे तो खुशी अपने आप अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी कि हम आसमान वाले के हैं और आसमान वाला हमारा है। हालेलुया। उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा है, उसने हमें अपने फर्जंद बनाया है, तो फिर क्यों हम इधर उधर भटकते फिर रहे हैं? क्यों हम इधर उधर जाते हैं? किसी को कहते हैं कि हमें अपना बेटा बना लो, हमें बेटी बना लो, किसी ने चाचा, किसी ने ताया बनाया। क्यों हमारी जिंदगी के अंदर और हैं इस तरह की चीजें? जब बादशाहों का बादशाह हमारा है तो फिर हमें किसी और चीज की, किसी और बंदे की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो हमारी जिंदगी के अंदर है तो फिर हमें किसी नेमत की भी जरूरत नहीं है, किसी और से मांगने की भी जरूरत नहीं है, किसी से भी कहने की जरूरत नहीं है कि हमें इस चीज की जरूरत है, क्योंकि जब इंसान की जिंदगी के अंदर खुदा आ जाता है तो बाकी चीजें इनाम में मिल जाती हैं। हालेलुया। कहते हैं कि पहले तुम उसकी बादशाही ढूंढो। पहले बादशाही ढूंढने की जरूरत है, पहले उसे तलाश तो करें। हम उसे तलाश करते नहीं और लिस्ट इतनी लंबी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, लेकिन हम तलाश नहीं करते। पहले उसकी तलाश करें, बाकी चीजें हमें इनाम में मिल जाएंगी। जब वक्त पूरा हो जाएगा तब हमें हर चीज मुहैया कर दी जाएगी। एक तो इंसान जो है वो बेसब्रा बड़ा है, वो चाहता है कि हर चीज फौरन उसको मिल जाए, जरूरत से पहले उसके पास वो चीज आ जानी चाहिए। लेकिन खुदा कहता है कि तू मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। इसका मतलब है कि होगा। दूंगा का मतलब है कि होगा, ये नहीं कि मैंने तुझे अभी दे दिया, ये ले पकड़ और ले और जा, नहीं। वो कहता है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन पहले तू मुझसे मांग तो सही, इंतजार तो कर, ईमान तो रख इस बात का कि तुझे मिल जाएगा। तो जब ईमान रखते हैं तो तब हमें मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जरूरत है इस बात की कि ईमान रखें कि खुदा अपनी हैकल के अंदर मौजूद है और हमने जाना है। अब जब हम हर संडे ये सोचेंगे कि खुदा वहां बैठा है, हम जाएंगे, नहायत बरकतें पाएंगे, तो यकीन करें कि आपके कदम जल्दी चलना शुरू हो जाएंगे, आपके कदमों के अंदर तेजी आएगी कि खुदा वहां पर मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम ये सोच कर निकलेंगे तो फिर कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। हालेलुया। 12 बरस की जो बूढ़ी औरत थी जिसके खून जाते, वो सोच कर निकली थी कि आज शिफा लेनी ही लेनी है, आज मैंने उसे छू ही लेना है। बताना कुछ नहीं है, कहना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, छू लेना है। और जैसे ही उसने उसके पल्ले को छुआ, एक कुव्वत उसके अंदर से निकली। कहता है मुझे किसी ने ईमान से छुआ है। हालेलुया। मुझे किसी ने
ईमान के साथ छुआ है। जब हम खुदा को ईमान से टच करते हैं तो फिर जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, फिर उसकी जो कुव्वत है वो हमारी जिंदगियों के अंदर ट्रांसफर होती है। कई बार हम चर्च आते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता, फिर घर जाके पता हम क्या करते हैं, कुछ समझ ही नहीं आई, पता नहीं भाई सब ने की मैसेज सुनाया सी, पता नहीं हवाला केड़ा सी। क्यों? क्योंकि हम सोच कर नहीं आए, हमने अपने ध्यान को नहीं ठहराया हुआ चर्च के अंदर, हमने अपने ध्यान को नहीं लगाया कि हो क्या रहा है यहाँ पर, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। लेकिन जरूरत है कि जब हम खुदा के घर में आते हैं तो अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी इंटेंशन, अपने पूरा ध्यान जो है हम खुदावंद को दें। जब हम खुदावंद को देंगे तो फिर उसके अंदर से निकलने वाली कुव्वत जो है वो आपकी और मेरी जिंदगियों को तब्दील कर देगी। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर से तो कुव्वत निकलनी है। बात है कि हमने रिसीव करनी है, हमने उसको किस तरह से छूना है। हमने यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करना है या बरकत को हासिल करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा फैसला है कि हमने क्या करना है। हमने खुदा के घर आने के बावजूद भी बरकत को हासिल करना है या नहीं करना है, वो तो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। उसका तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, वो अपना आसमान छोड़कर हमारे दरमियान में मौजूद है। आज जरूरत है कि उससे अपनी बरकत को हासिल कर लें। हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरत है कि हम इस कलाम पर अमल करें और खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।